Okay, so yesterday we talked about, in the last lecture, we talked about chapter number 2, and we discussed uh, different cultural aspects. We discussed cultures are taken for granted. We sometimes do not realize, what our culture is and what we are doing and why we are doing that, right? We also discussed we need to practice cultural relativism. Um, Culture is within us, right? And uh, we all are influenced by the culture in which we are brought up. Similarly, culture is a lens. Culture is used as a lens. Through culture, we see the world. If we see the rest of the world with our own lens, right? So uh, when we go to another culture and we see very different things, we get a cultural shock because we are too much focused on our own culture, which is an ethnocentrism. That means looking at the world through your own cultural lens, right? Then we discuss this photograph, which is a stark contrast of two cultures, right? We discussed that practicing cultural relativism is very important if we want to understand other cultures, right? Because if we do not practice cultural relativism, that means we will be looking at other cultures from our own perspective. We discussed various examples. If you remember, something that is delicious food for some people may be simply, disgusting for others, right? And then there are different standards of beauty in the world. Then we discuss components of culture, including symbolic culture that include gestures, language and perceptions, value, norms, folkways and mores. We discussed them one by one in the last lecture, and then we discussed subcultures and countercultures, right? Today we'll be starting with the next learning objective, which is values in different societies. We'll talk about the US society, and then we'll also talk about the core values in Pakistani society, right? So USA has value clusters, mean different pockets where some values are more important, and then there are value contradictions as well, right? There are values which are important for one group of persons, one group of people, and not important for other groups of people. So there are contrasting values. It happens everywhere in the world. You can understand, I mean, even in Pakistan, there are value contradiction, value clashes between the modern people and conservative people, right? So values are distorting lenses. Since we see things through culture, through values, right? So they distort our lens, they distort the way we see the world, right? And then would be ideal culture versus real culture. For example, ideally, we should all respect law. Nobody would say do not respect law. Everybody would tell you that we, as responsible citizens, we should respect the law. However, do we really respect the law? We don't know. I mean, most people, if they realize there's nobody around, there's no police person is around, and even if the traffic light is red, they would just stop. They won't stop on the crossing. So ideal versus real cultures are different. Ideal culture sometimes is very idealistic,
but the real culture may be very different than what we expect in the ideal culture, right? Overview of US values, achievement and success. US people are very strongly influenced by this value, achievement and success. People work hard, and the achievement is considered to be very deeply ingrained value. Now you can ask, you might think कि अचीवमेंट और सक्सेस तो हर बंदा चाहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. कई कल्चर्स में लोग बड़े ठंडे होते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. अमेरिकन रियली वर्क हार्ड फॉर अचीवमेंट. इसी तरह इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. इंडिविजुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर्ड विद कलेक्टिविज्म. हमारे यहाँ आपको अपनी नानी का भी ख्याल होता है, दादा का भी ख्याल होता है, दादी का भी ख्याल होता है, मामू का, चच, तो हम एक्सटेंडेड अप्रोच होती है नॉर्मली, राइट? People work hard in America, efficiency and practicality. Science and technology is very important compared with myths and other things. अब आप यहाँ पे देखें ना कि मेडिकल डॉक्टर्स की बजाय अक्सर लोग तरजीह देते हैं और कहते हैं जी फलां बंदा है, वो कोई ऐसी उसके पास दवाई है, कोई नुस्खा है पुराना, कोई 200 साल पुराना, कि वो बड़ा अच्छा है. तो रिलेटिव जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वहाँ पे लोग ज़्यादा साइंस को मानते हैं. मटेरियल कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट, नॉट स्पिरिचुअल कंफर्ट, राइट? फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. वो कहते हैं अमेरिका फ्री हम नेशन है, इसलिए जो हमारा दिल करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, वो सारी ये चीज़ें कहते हैं. इसी तरह डेमोक्रेसी इज़ अ मेजर वैल्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स. बच्चों को दूसरी तीसरी क्लास से डेमोक्रेसी पढ़ाई भी जाती है, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है. छोटी क्लास 1 और 2 से ये बात बताई जाती है कि हाउ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. उन्हें उनके बच्चों के क्लासेस में इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप अपना मैनिफेस्टो प्रमोट करें, ठीक है? तो ये चीज़ें शुरू से बच्चों में सिखाई जाती हैं. आपको इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है. हमारी वैल्यू है रिस्पेक्ट को ज़्यादा. हम ये कहते हैं एक बंदा के बड़ा बंदा खड़ा हो और दूसरा बंदा बच्चा हो और वो कहे जी मेरे बराबर है, तो लोग कहेंगे यार तू पागल है. लेकिन यूरोप में, यूएसए में इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप सुपीरियरिटी. इसी तरह यूएसए वालों को वहम है कि वो दुनिया की ख़ास ऐसी नेशन है जो दूसरों से बहुत बेहतर है, ठीक है? इसलिए ग्रुप सुपीरियरिटी है. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिलीजियोसिटी टू सम एक्सटेंट, रोमांटिक लव. However, here you can see values clusters. Education, hard work, material comfort. I mean, they make one cluster called success cluster. इस सारी चीज़ें मिलकर. अब इसके मुकाबले में पाकिस्तानी कल्चर अगर देखें तो यहाँ पे इक्वालिटी की बजाय देयर इज मोर फोकस ऑन रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. यानी बजाय आपके ये कहने के कि जनाब वो जो मेरा मामा जी हैं वो मेरे बराबर है, इसलिए मैं अगर वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसे थप्पड़ मारूंगा, दैट मे बी टोटली अनएक्सेप्टेबल. इसी तरह लोग अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं. आप कभी देखें कि जनाब वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ गए हैं फलां, तो लोग दिल से वो होता है कि जनाब अथॉरिटी इज़ रिस्पेक्टेड. एमएनए एमपी आए तो 15 20 30 बंदे साथ लेके आता है. अथॉरिटी दिखाते भी हैं और लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो रोल सेग्रीगेशन. रोल सेग्रीगेशन का मतलब है हस्बैंड इक्वालिटी की बजाय कि जनाब आधे कपड़े खामद धोगा और आधे कपड़े वाइफ धोएगी, इस तरह नहीं. देयर आर पीपल हैव सर्टेन रोल्स.
there is role segregation. Husband normally are expected to earn money for the family, earn the livelihood, and wives on the other hand, they are considered to be taking care of the family more than paying attention on the financial affairs, right? So role segregation is very strong in Pakistan. Similarly, collectivism, group cohesion based on baradri, zaat, clan, बहुत ज़्यादा कलेक्टिविज्म है. आपको पता है कि एक बरादरी के लोग दूसरी बरादरी में कई दफ़ा शादी नहीं करते. कई दफ़ा शादी, अगर कई शहरों में तो अब ये थोड़ा बहुत रिवाज हो गया है, देहातों में अभी तक एक बरादरी के लोग दूसरी बरादरी में शादी नहीं करते. तो ये समझा जाता है कि अगर हमने शादी की तो वहाँ पे एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगी, क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट है दूसरी बरादरी की. इसी तरह दूसरी ज़ात में, दूसरे कबीले में शादी नहीं करते. ठीक है. इसी तरह पाकिस्तान जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज़ है. पीपल आर रिलीजियस, दे आर वेरी religion and God is very important in their lives, right? So these are some of the Pakistani cultural values, right? Now, if you look at this value contradictions, ये है कि अब मैंने आपको कहा यूएस वैल्यूज ग्रुप सुपीरियरिटी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों का एक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं, और उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रुप सुपीरियरिटी चेंज हो रहा है ना. तो वैल्यू कंट्राडिक्शंस आती हैं. वैल्यूज, कुछ लोग वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग वैल्यूज को कंट्राडिक्ट करते हैं. ठीक है, वो उनको पसंद नहीं करते. ठीक है. वैल्यू कंट्राडिक्शन जो है दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप सुपीरियरिटी, तो दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द अनदर वैल्यू डेमोक्रेसी. हमने अभी कहा कि ग्रुप सुपीरियरिटी, ऐसे अमेरिका में ये स्टिल चीज़ है कि जो वाइट्स हैं वो दे कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर देन ब्लैक्स. हालांकि डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट ये है कि सारे बराबर हैं. ठीक है, लेकिन इसी तरह तो ये वैल्यूज कंट्राडिक्शन है. सम वैल्यूज they contradict with others, right? So these are called value contradictions. वैल्यूज चेंज होती रहती हैं. वैल्यूज आर चेंजिंग ओवर टाइम. और आप देखिए कि इमर्जिंग वैल्यू क्लस्टर्स के हैं. नई वैल्यूज कौन सी? मसलन लेजर, बहुत ज़्यादा लोग सैर करते हैं. आहिस्ता पिछले 50 साल की निस्बत ज़्यादा लोग लेजर टाइम पसंद करते हैं, फ्री टाइम लेना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं. लेजर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इमर्जिंग. और पाकिस्तान में भी है. अब बाय द वे आप देखिए पाकिस्तान में भी लोग, आप बहुत ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, लोग बाहर जाते हैं. हॉलीडेज बहुत बढ़ गया है. मरी में आप देखें, इधर नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया. ठीक है ना. इसी तरह सेल्फ फुलफिलमेंट, फिजिकल फिटनेस, अगेन इट्स अ ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबली इमर्जिंग वैल्यू. पाकिस्तान में भी आप देखें, आज से 10-15 साल पहले बहुत थोड़ी फीमेल्स जिम में जाती थी. अब फीमेल्स भी जाती हैं, लड़के भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है. फिजिकल फिटनेस दैट इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. कॉन्सर्ट में भी आपने देखा, कॉन्सर्ट में एक जिम बन गया, तो वहाँ पे फीमेल के लिए भी टाइमिंग्स हैं, मेल के लिए भी टाइमिंग्स हैं. तो अब ये सारी फिजिकल फिटनेस एक आप देखिए कि दुनिया में एक इमर्जिंग ट्रेंड है, इमर्जिंग वैल्यू है. यूथफुलनेस, पीपल एंजॉय द यूथहुड, एंड सिमिलरली कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. अमेरिका में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बन गई है कि कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. अगर कोई चीज़ प्लास्टिक है फॉर एग्जांपल, अब ये समझा जाता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो लोग इससे जनरली नापसंद करते हैं. ठीक है.
An example of physical fitness, which is an emerging value cluster, right? अभी आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारी नई चेन्स आ रही हैं जिम्स की। बहुत सारी नई चेन्स आई हैं यहाँ पे। पहले आप देखें सिर्फ एक आधी कोई होता था, वो शेप से बड़ा मशहूर था, ठीक है। अब रिसेंटली आप देखिए यूएफसी, एक वो कहते हैं इंटरनेशनल चेन है, यूएफसी जिम आई, इन्होंने काफ़ी सारे अपने जिम्स खोले हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मेंबरशिप भी ले रहे हैं इसकी, मेंबरशिप फी। तो ये सारा एक नज़र आता है कि फिजिकल फिटनेस का एक ट्रेंड है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले अर्ज किया, व्हेन वैल्यूज क्लैश देयर आर कल्चरल वॉर्स। कल्चरल वॉर्स अब देखिए पाकिस्तान में कंजर्वेटिव वो कहते हैं जनाब ये जो लोग हैं ये हर वक्त मज़हब की बात करते हैं, कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो मज़हब के खिलाफ बोलते हैं, या ये लिबरलिज्म की बात करते हैं, ये असल में ये हमारे कल्चर में मिसफिट है। इस तरह की दोनों एंड्स पे ये बातें हो रही हैं, इनको हम कहते हैं कल्चरल वॉर्स, राइट। सो values are distorting lenses. Values are distorting lenses. अच्छा, उससे पहले मैं आपसे अगर आप ये तस्वीर देखें, values both those held by individuals and those that represent a nation or people can undergo deep shifts. It is difficult for many of us to grasp the pride with which earlier Americans destroyed trees that took thousands of years to grow. अब देखें ना, पहले बड़ी बहादुरी समझी जाती थी, कहते मैं बहुत बड़ा दरख्त काटा है। अब वही चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट समझा जाता है कि लोग समझते हैं यार जो दरख्त काट रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब देखिए ये वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई, ठीक है। So then values are distorting lenses. जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि वैल्यू, हम लेंस क्या होता है जिसके जरिए हम दुनिया देखते हैं, ठीक है, और वैल्यूज अपनी जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज डिटरमिन करती है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। मसलन अमेरिकन जो है वो इंडिविजुअलिज्म को बड़ा पसंद करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अगर कोई कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, तो वो समझते हैं कल्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने लेस उनकी अपनी वैल्यूज उनके देखने के अंदाज को डिस्टॉर्ट करें। अगर वो अमेरिकन समझते हैं कि यार ये इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आप किसी को भी किसी बारे में जो मर्जी बात कह दें, और जो नहीं कहता वो से उन्हें वो अच्छा नहीं, वो कहते हैं ये तो ठीक लोग नहीं है, ये इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत नहीं है। सो वैल्यूज आर डिस्टॉर्टिंग लेंसेज, राइट। इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, आइडियल वर्सेस रियल कल्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कल्चरल यूनिवर्सल्स. Some activities are universal. For example, courtship, marriage, funeral, games. हैं आप ये सारे ही आपको पता है, मैरिज सारी दुनिया में होती है, लोग हर जगह पे मरते हैं और कुछ ना कुछ फ्यूनरल्स होती हैं, गेम्स हर जगह पे। लेकिन मसला ये है कि present in all cultures, but the specific customs differ from one group to another. Right? What are some examples of activities that you think might differ from one culture to another? ये आप थोड़ी देर के लिए आप सोचें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक कल्चर में फर्क है दूसरे में फर्क, ठीक है ना। कुछ तो यूनिवर्सल होगी, मसलन शादी करना यूनिवर्सल चीज है, ठीक है। अब
इकट्ठी फैमिली के तौर पर रहना, कुछ ना कुछ फैमिली है, ये आमतौर पर यूनिवर्सल है। फ्यूनरल्स यूनिवर्सल है, गेम्स सारी दुनिया में होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हर कल्चर में डिफरेंट होती है। बल्कि इवन शहरों में, एक शहर में दूसरे शहर से फ़र्क होती है, दूसरे शहर में वो चीज़ नहीं पाई जाती। अब आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कल्चरल हैं। एक मिसाल के तौर पे आप कोई एग्जांपल देखें, सोचें इस बारे में। मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे यहाँ पे पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट है, तो अब ये कल्चरल है, बड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत सारी इवन मुस्लिम कंट्रीज में इस तरह का नहीं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं, मसलन मेहंदी करना शादी से पहले। मैरिज तो यूनिवर्सल है, लेकिन आप वो दूसरी एक्टिविटीज़ कौन सी करते हैं वो बड़ी डिफरेंट है। यहाँ से फ़र्क है, बाहर फ़र्क है, ठीक है। अब सो एक्टिविटीज़ में बी सेम और मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स, राइट। नाउ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल विलेज। अब आप देखें कि ग्लोबल विलेज में टेक्नोलॉजी जो है इससे बहुत बड़ी चेंज आ रही है। इससे पहले मैं सॉरी एक थोड़ा सा ना इस पे बात कर लूँ। देखिए, एक ये भी हम कर रहे हैं ना कल्चरल यूनिवर्सल्स की और फिर डिफरेंट, इसमें एक क्वेश्चन जो है बायोलॉजिस्ट से बात करते हैं, सोशो बायोलॉजिस्ट, कि जी हम असल में वी आर स्लेव्स ऑफ आवर जीन्स। जो कुछ हमारे जीन्स में है वही चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, और कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो हम ये सोशियोलॉजी में कहते हैं कि जीन्स का भी इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कल्चरली इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा, एक केस स्टडी है पेज नंबर 57 पे, ठीक है। क्रिटिकली, आर वी प्रिजनर्स ऑफ आवर जीन्स, सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये आपने पढ़ना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल विलेज। टेक्नोलॉजी आपको पता है सारी दुनिया में चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और डिफरेंट तरह की आ रही है। सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। फिर इसी तरह द वे यू एडवर्टाइज इज चेंजिंग, द वे यू order food, that is different, right? The way you um, you communicate with your friends, that is changing, है ना। मोबाइल फोन पहले तो नहीं होते थे। अच्छा, अब अगर इसमें देखें तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेज से चेंज है, लेकिन उसके कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी देखें, कल्चरल एस्पेक्ट किस हद तक चेंज हो रहे हैं। यहाँ एक आपको सामने एग्जांपल है सामने कि लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। द पास्ट decade has seen major developments in communication. The ease and speed at which we can talk to other people across the globe. The development is destined to have vital effects on culture. The photo of teens texting was taken in the village of Ethiopia. आप इवन पाकिस्तान के विलेजेस देखें, यहाँ पे भी दूर दराज गांव में जहाँ पे लोगों के पास रोटी नहीं है, वहाँ के पास मोबाइल है, फ़ोन है, और टेक्नोलॉजिकली वो दुनिया के साथ चल रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें, दो चीज़ें इसमें, दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जब टेक्नोलॉजी कल्चरल चेंज आता है तो दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, एक को हम कहते हैं कल्चरल लैग और दूसरे को हम कहते हैं कल्चरल चेंज। कल्चरल लैग का क्या मतलब है? कल्चरल लैग का मतलब ये है कि कल्चरल लैग का मतलब ये है कि
एक कल्चर जो है वो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में वो दूसरे कल्चर से पीछे रह जाता है, वो उस तरह फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग, आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, कुछ मुल्कों में जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत थोड़ी है, सो कल्चर लैग है, ठीक है, आप पीछे रह जाते हैं उस चीज़ों में, उसी तरह फॉलो नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पे मैकडोनल्ड्स और ये बर्गर्स ने बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट बनाई है, लोग ये वेस्टर्न फूड आप देखिए यहाँ पे शवामा और बर्गर्स वगैरह हर गली मोहल्ले में बिकते हैं, लेकिन कई कल्चर ऐसे हैं वहाँ नहीं, वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड ही पसंद किया जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर लैग है। इसी तरह यानी अगर सारी दुनिया में कल्चर चेंज हो रहा है, स्पेशली फूड शायद इतना अच्छी एग्जांपल नहीं है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी वाइज के लोग, वैसे जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी ऑनलाइन शॉपिंग की, इसी तरह आप देखें किस हद तक लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं, अगर कहीं पे नहीं करते तो इसका मतलब कल्चर लैग है, ठीक है। कल्चर लैग इज कंट्रास्टेड विद द cultural change. There you go, look at an example. Technological advances are now so rapid that there can be cultural gaps between generations. Just think of it as if you are reading a long text message. वो माँ बच्चे को दे रही है, कहती है किताब पढ़ो, इसे टेक्स्ट मैसेज के तौर पे ही ना है। बच्चे ने कहाँ पढ़ना है, उसने कहना है ना मैं टेक्स्ट मैसेज ही पढ़ लूँगा। तो कल्चरल चेंजेस बहुत तेजी से हो रही हैं, स्पेशली इंटरनेट एरा में, राइट। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है हम कहते हैं कल्चरल लेवलिंग। कल्चरल लेवलिंग कल्चरल लैग तो हमने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से पीछे रह जाते हैं, कई कल्चर्स इनोवेशन की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसका उलट साइड ये है कि कल्चरल डिफ्यूजन बहुत हुई है, यानी एक तरफ हम कह रहे हैं कि दो कल्चर्स के दरमियान गैप होता है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से कल्चर्स बहुत सारे सिमिलर हो गए हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी में जो हमारे तक चीज़ें पहुंची हैं, यानी जैसे ही अमेरिका में चैटिंग शुरू हुई और बहुत थोड़े अरसे बाद जो है ना पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे ये चैटिंग और एक दूसरे से बात करना शुरू हो गया। जो अब मोबाइल फ़ोन आता है कोरिया में या अमेरिका में, और 3-4 महीने बाद वो पाकिस्तान में भी वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बहुत इसको हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन हुई है, या इन अदर वर्ड्स कल्चरल लेवलिंग। कल्चरल लेवलिंग का मतलब है द प्रोसेस बाय विच कल्चर्स बिकम सिमिलर टू वन अनदर, राइट। स्पेशली जो हमारे वेस्ट से करीब हो जाए कल्चर, इसको हम कहते हैं कल्चरल लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए हम बहुत सारी चीज़ों में कल्चरल लेवलिंग हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्स यूज़ करना, बैंकिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करना, जैसे वेस्ट में होती है यहाँ पे भी लोग करते हैं, ठीक है। हालांकि कल्चरली बड़े हमसे एडवांस कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन जैसे वेस्ट में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, डिफरेंट बिजनेस ऐप्स यूज़ हो रही हैं बैंकिंग के लिए, आप माइक्रोसॉफ्ट, ये नहीं रिसेंट एग्जांपल देखें ना कल्चरल लेवलिंग की, जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट जो है गूगल मीट और गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम, ये वेस्ट में जितनी जल्दी शुरू है मेरा हाल है विद इन वीक्स ये सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट फैल गए, और इसका मतलब है कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी, कल्चरल गैप्स जो थे इस हवाले से वो बहुत थोड़े रह गए, इसको हम कहते हैं कल्चरल लेवल, राइट। Look at this example. Cultural leveling is occurring rapidly with some strange twists. These men from Amazon tribe, आपको पता ना Amazon river जो है उसके साथ
Amazon tribes हैं, who have just come back from a week of hunting in a jungle, are wearing traditional head, headdress and using traditional weapons, but you can easily spot something else that is jarringly out of place. ठीक है ना? अब आप देखिए कि यहाँ पे मतलब डेफिनेटली यानी कल्चरल लेवलिंग जनरली हो रही है. कल्चर काफ़ी बहुत सारे एस्पेक्ट में कल्चरल सिमिलैरिटी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे जो अमेजोनिया दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कल्चरल लैगिंग बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे कल्चरल डेवलिंग नहीं होगी, नहीं है और मुश्किल है कि हो दोबारा. ठीक है, तो ये मैंने आपको ये चीज़ें अर्ज कर दी हैं. ये चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया है. मैंने आपको रिपीट भी आज पिछले लेक्चर की चीज़ें कर दी. ठीक है, अब आप इसे केयरफुली देखें. अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then we can discuss those questions. Simply if you have any confusion, simply give your write it down on the group, and then we can discuss those confusions, right? So that's all for today. Just rest of the time go through the case study I've referred to you, right? वो मैंने अभी आपको बताया कि केस स्टडी पेज नंबर 57 पे केस है. Are we prisoners of our genes? ठीक है, ये केस पढ़ें और फिर you know it will be open for discussion, right? Okay, then see you in the next lecture. Thank you.